इंडस्ट्री बहुत ट्रेडिशनल था. विथ एवरी जनरेशन यू हैव टू बी विद द जनरेशन. जितना ऑन स्टेज परफॉर्मेंस मैटर करता है उतना ही हमारा बैक स्टेज ऑरा भी मैटर करता है. आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ टू द फुलेस्ट. बट एक अंदर कहीं ना कहीं फियर तो रहता है. नंबर ऑफ शोज माइट रिड्यूस इन फ्यूचर और देयर विल बी मोर कॉम्पिटिशन. मेरे टाइम पे तो मैंने सिर्फ सुना है लोगों को आईटी में काम करते हुए डॉक्टर, इंजीनियर या इनकम टैक्स या पुलिस. ओके अनीशा, लेट अस आस्क यू controversial questions. ओके. Welcome to another episode of the Planners Podcast, and today we have here with us a host, not the host, but the host Anisha Thakkar. Can we have a round of applause for Anisha, guys? Come on. You guys can also clap. But anyways, Anisha, hi. Hello. How does it feel to be on the other end after a long time, I guess? Superb, I guess, because after a long time, no, not that way, but then you feel great because as an MC, you don't get an introduction. So at times I feel very good when another MC introduces me. So yeah, that's a very good thing. So as we all know, Anisha needs no introduction. ये हम लोग बोलते हैं ना. Being modest. नहीं, हम लोग हर इवेंट में यही बोलते हैं ना. जब कुछ पता नहीं होता है जब ज़्यादा. कुछ पता नहीं, हाँ, so true. जब कुछ पता नहीं होता है या तो आपको प्रोफाइल दिया गया है और आप भूल गए हो कि क्या है. So this man needs no introduction at all. Ladies and gentlemen, with a loud roar, let's welcome him on stage. So because you've been into the industry for a really long time, but you look completely different. Like you still look 25. Internally, I am not. Internally, internally you're not. Don't judge me on my external things. So how would you say, how has the industry evolved? 15 साल पहले क्या था, अभी क्या है? See, 15 साल पहले what I feel is इंडस्ट्री बहुत ट्रेडिशनल था. बहुत, हर कुछ में बहुत ट्रेडिशनल था. मतलब जैसे ये मैं बहुत इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम कि मैं ये वर्ड सुन रही हूँ जेनजी. ठीक है, मुझे लगता है जब से मैं ये वर्ड्स खुद सीखी हूँ कि जेनजी इंडस्ट्री भी जेनजी बन गया है. लाइक मुझे पता था, if I talk about wedding events, when I used to host, when I started hosting wedding events, people used to ask me wear a traditional outfit like a sari or a lehenga or something. But these days it's totally different. These days they ask us to wear western clothes and come. Right. And then there are so many different types of themes. So every time it's like with every generation you have to be with the generation. Even if your age is not that, but you have to be with the trend. And so, when we, one thing which I'm sure you have noticed, even I have noticed, let's say 15 years ago, 10 years ago, everyone around us were not that much into public speaking. पहले माइक को पकड़ के कुछ बोलना ही बहुत बड़ी बात होती थी. And right now when we are seeing, let's say 70% of the crowd is very free in front of the mic. Yes. पहले एक एंकर का काम होता था कि आप खाली माइक पकड़ के आप बोल पा रहे हो तो आप एंकर हो. Now you have to do a lot more in the industry to survive, and in a way you have to outstand everyone around. वरना what's that speciality? तो अभी कितना स्ट्रगल है, मतलब अभी what all tricks and tips you need to keep in your pocket? मुझे लगता है अभी स्ट्रगल कम है मेरे हिसाब से. Why? Because in those days anchoring means research. Anchoring means a tough job when it comes to permissions from parents. Earlier parents used to think that this is a job where you cannot get a fixed income. Correct. After a certain point ये काम चलेगा नहीं. What's next? अभी things are different. Nowadays people do take anchoring as a career, and they are being motivated through different platforms that please take anchoring or RJ or something else, which is like earlier used to be like कि इसमें क्या ही कर लेगा हमारा बच्चा. एक डांसर बन जाएगा तो क्या ही कर लेगा. बट अभी ये पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है with social media, with the kind of reality shows you are having these days. पहले बच्चों को डांस कराना, like I come from a very conservative family. So मैं खुद भरतनाट्यम सीखती थी.
जब मैं एक रियलिटी शो में मुझे चांस मिला, माई पेरेंट्स डिड नॉट अलाउ मी टू गो. वाई? बिकॉज दे वर अ लिटिल skeptical about the clothes they will allow me to wear for those performances. So, but aajkal, me being a mother, I push my child because she's good in dancing. I push my child ki no, you go, you explore. Like even if it's not studies, you have a lot of scope in sports, in other co-curricular activities. It's just that you have to understand that what are you good at and explore accordingly. तो अभी मुझे लगता है things are easy. Also, you see with social media, even if you are not a good anchor, if you post few videos where बहुत अलग तरीके से अगर photography team and videography team आपको एक star बना देता है, right. मतलब आप बोले हो 10 पैसा का और आपको बनाता है वो लाख रुपए का through their skills. तो I think this is much more easier these days. And is it wrong, like अगर कोई अपने marketing में, अपने PR में, if they are more involved, it's ultimately artists are businessmen at the end of the day. Yes. We are doing business and अगर कोई किसी की marketing strong है तो कोई बुराई तो है नहीं इसमें. एकदम नहीं है. Even that is a skill. That is a talent you have. आपकी marketing अच्छी है तो आप उस हिसाब से आप खुद को और grow करवा रहे हो. खुद को अगर आपको 10 लोग जानते हैं through marketing, there's a possibility of 1 lakh people knowing you. Correct. So there's nothing bad in it. And no, अगर अपन, because even I am a MC, you are an MC. As an artist, there are, we are working for the people. We are working for everyone who is watching us. Yes. And there is a effect which I recently read about, and I even want to tell it correctly. It is Pygmalion effect. So, and I really was surprised क्योंकि it was an experiment. Class 8 में there were the first batch में they were like 100 बच्चों को all the teachers were continuously praising. आप बहुत smart हो, आप बहुत intelligent हो, and 100 बच्चों को all the teachers were continuously telling कि यार तुम बेकार हो, तुमसे कुछ होगा नहीं, नालायक हो. End of the year result shown, जो भी praised, जिनको praise किया गया था, they outperformed everyone else, and those who were even good students उनको बोल के खराब कर दिया. If we apply this theory to our lives, लोग कितना कुछ बोलते रहते हैं, does it affect you? अगर कोई इवेंट मैनेजर है जो बहुत तारीफ करता है आपकी, तो does it give you a better show? और कोई इवेंट मैनेजर who doesn't give you that amount of respect, oh अच्छा निशा, हाँ please come do your thing. So does that affect you? And if yes, how? If no, how? See, in both the ends, I see a very positive effect. The event manager who praises you for your work, you feel that you can do better so that next day जाके थोड़ा और अच्छा सुनने को मिले. The event manager who doesn't, I think maybe कहीं कुछ तो गलती हुआ होगा which he is trying कि मैं improve करूँ उस sector में. तो उसमें मुझे scope मिलता है कि मैं और research करूँ, मैं और बेहतर बनूँ. I go and watch a lot of videos of all other MCs. I do not copy them, but I learn from them. So every time I have seen, I won't name anybody, I have seen few MCs talking about कि उसने मेरा ये copy कर लिया, उसने मेरा ये copy कर लिया, मेरे games copy कर लिए. But you are not understanding that why are they copying you? Because you are good at it. And if they are copying you, that means they are learning from you, right? So when the event manager tells me that अन्वेषा आज तुम्हारे शो में ये गलती हुआ है, I take it in a very positive way that at the end of the day this person is giving me a show, इनसे मेरा घर चल रहा है, तो अगर ये मुझसे कुछ बेहतर चीज़ मांग रहा है, there is nothing bad in it. आप उनसे पूछो कि मैं कहाँ गलत हूँ और आपको क्या लगता है कि क्या करने से वो सेक्टर में मैं और बेटर हो सकती हूँ. So that again will give him a feeling that Anvesha wants to improve. Right. Anvesha is taking this in a positive way that उसने गलती किया है, she's accepting. So it's a very good thing to accept that you have made a mistake and do better in it and never repeat it. So if he doesn't inform you कि आपने वो किया है, you will never get to know. You will be in a psychology कि अरे मैंने तो बहुत अच्छा किया है और वो आप 10 बार रिपीट करोगे और वो 10 बार के बाद आपको नेक्स्ट 10 शोज नहीं मिलेंगे. एंड वो एक हैबिट भी बन जाती है. बहुत बार जैसे अभी जब रिस्पेक्ट की बात आई ना एंड अबाउट अप्रिसिएशन,
often I've noticed जितना ऑन स्टेज परफॉर्मेंस मैटर करता है उतना ही हमारा बैक स्टेज ऑरा भी मैटर करता है. True. When you are entering the event, how are you communicating with the manager, with the whole team? क्यों है ऐसा? मतलब मुझे बैक स्टेज भी क्यों एंकर बन के रहना है? मतलब बैक स्टेज में why can't I be like lousy and I just perform on stage and then I can why is the world working like this कि मुझे backstage भी aura maintain करना है. I tell you, when you enter a venue, you are a star already. Yeah. When you're an MC, you are the only one who is standing on stage, right? When you talk about backstage, if you maintain the aura from backstage, वही same energy के साथ आप stage पे आ रहे हो. Correct. Right? And you see these days, being a star is not easy. There are people who would come, try to take selfies, try to talk to you, try to learn from you. So if you have that aura from backstage कि मुझे अभी स्टेज पे जाना है और वो 100 लोग मुझे ही देखेंगे और मुझे ही सुनेंगे, राइट? तो वो एनर्जी आपके साथ ट्रैवल करेगा स्टेज पे. आप बैक स्टेज जितना लाउजी रहोगे, आप सोचोगे कि मैं सो रहा हूँ, फिर स्टेज पे जाओगे, वही एनर्जी आपके साथ स्टेज पे ट्रैवल करेगा. एंड देन जस्ट इमेजिन दिस पर्सन, he can be your client or he can be one from the audience who is coming to you and trying to talk to you before this show. And वो आके देखता है that you are yawning. वो पहले ही थोड़ा डिमोटिवेट हो जाएगा, अरे ये क्या मेरा शो करेगा, इसको तो नींद आ रहा है, इसको कॉफ़ी पिलाओ. ठीक है? अगर आप एकदम फुल काम पॉइज्ड, आप पूरे उसमें हो कि मुझे अब स्टेज पे जाना है, मुझे ये बोलना है, एंड देन जस्ट इमेजिन यू आस्क द क्लाइंट दैट आई वुड बी नीडिंग अ ब्लैक कॉफ़ी बिफोर आई स्टार्ट द शो. आपको क्लाइंट ऐसे रिप्लाई करेगा, प्लीज़ आर्टिस्ट के लिए ब्लैक कॉफ़ी लाओ. और आप ऐसे लेजी सो रहे हो, अरे इसके लिए ब्लैक कॉफ़ी लाओ, इसको तो नींद आ रहा है. सो यू विल अंडरस्टैंड द एटीट्यूड कि क्लाइंट कितना कॉन्फिडेंट है आपको लेके. सो वंस द क्लाइंट इज कॉन्फिडेंट, नो, आपका शो अपने आप उसके चेहरे पे दिखेगा. कि जैसे कभी कभी होता है कि मैं शो में जाती हूँ एंड हो ही सकता है कि मैं लेट हो गई. जनरली आई एम वेरी पंक्चुअल, बट 15 मिनट्स 20 मिनट्स यू कैन एक्सपेक्ट. और मैं जैसे ही जाती हूँ, लाइक दिस हैपेंड इन वन ऑफ माई इवेंट. सो दिस वॉज फॉर मिराज इवेंट. I'll quote because एक नाम तो मिला, चलो finally. No, because it was a good thing. What happened is उनका शो था शाम को. It was a very small show, very compact show. तो मुझे लगा 7:30 बजे शुरू होगी, तो मैं 5 बजे तक जाऊंगी, which is like काफ़ी टाइम है. एंड मैंने पहले से ब्रीफिंग ले लिया था. तो जिस दिन शो था उसके पहले वाले दिन the event manager called me and he's like, Anvisha, you please come at 2, we'll do a dry run. And there's nothing bad in it. We'll do a dry run and then फिर आपको change के लिए room दिया जाएगा. You get ready and do the show. But I was not aware that I have to come at 2. तो मेरे पास और एक शो था सुबह वेस्टर्न में, कहीं और करना था मुझे. तो I informed him that मैंने already brief ले लिया है. I spoke to the director also. So you don't worry, I'll be there by 5 o'clock, which is like enough time to do a dry run, and I'll come ready. So do not worry at all. So the moment I entered right at 5 o'clock. He's like, finally, Anvisha आ गया, अब कोई टेंशन नहीं है. So this is the thing I wanted. अगर मैं 2 बजे नहीं भी आ पाई और मैं 5 बजे आई, with the confidence was there on his face, अरे अब तो अन्वेषा आ गई, अब तो कोई टेंशन नहीं, अब शो हो जाएगा, मतलब शो रन हो जाएगा. बट वहीं पे ये अगर फीलिंग नहीं होता है, सो इफ द क्लाइंट इज नॉट कॉन्फिडेंट विथ यू, वो आपको फोन करता रहेगा, वो खुद परेशान होगा, आप परेशान होंगे कि इसका फोन बार बार क्यों आ रहा है. तो वो स्टेज पे आप खुद को जाने ही मत दो. आपने बोल दिया है कि मैं 5 बजे आऊंगी, उसको पता है आप 5 बजे आओगे, एंड फिर दोनों टेंशन फ्री है. मुझे पता है मैंने ब्रीफ ले लिया है, उसे पता है उसके पास ट्रस्ट फैक्टर आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन यू नो स्पेशली इन द इवेंट इंडस्ट्री. एंड अगर इवन आई हैव फेल्ट दैट जब कोई इवेंट मैनेजर आपको ट्रस्ट करता है ना, तो द स्टार ऑरा कम्स ऑटोमेटिकली. आई डोंट हैव टू फीड इन अ स्टार ऑरा. आई नो मैं जाऊंगा एंड दैट स्माइल इज देयर, दैट आई एम गोइंग टू अ हैप्पी प्लेस. स्टार ऑरा में ना एक थिन लाइन है, स्टार ऑरा एंड एरोगेंस का. मुझे ब्लैक कॉफी चाहिए, मुझे ब्लैक कॉफी चाहिए. दैट डिफरेंस ऑफ स्टार ऑरा. Let's discuss what are your point of views on
differentiating a star aura and arrogance. I tell you कि ऐसा होता है कि कभी ब्लैक कॉफी नहीं मिलता है. हाँ. तो मैं बोलती हूँ बिकॉज आज नहीं मिला. मुझे नहीं चाहिए. मुझे आप ब्लैक कॉफी नहीं ला के दे रहे हो कोई बात नहीं, मुझे आप गर्म पानी लाने दो. बिकॉज दैट्स अ नेसेसिटी विच वन आर्टिस्ट नीड्स बिफोर गोइंग टू द स्टेज. हो ही सकता है कि इवेंट मैनेजर तब ऐसा स्टेज पे हो, वो थोड़े क्लाइंट के साथ बिजी हो कि ब्लैक कॉफ़ी वो नहीं ला के दे रहा है. बट आप ये समझाओ कि एक गर्म चीज़ की ज़रूरत है जिससे मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी और उससे दोनों का बेनिफिट है, आपका भी मेरा भी. तो यू डोंट फोर्स थिंग्स एट टाइम्स. जनरली मिल ही जाता है, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग. अगर नहीं मिलता है तो डू नॉट फोर्स. यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वो कौन से स्टेज पे है. सी इट्स अ 2-way प्रोसेस. अगर इवेंट मैनेजर नहीं होगा, वो अगर हमें काम नहीं देगा, हम लोग किसके लिए काम करेंगे? हाउ मेनी डायरेक्ट क्लाइंट्स डज वन हैव? नो आर्टिस्ट विल से दैट आई हैव मोर डायरेक्ट क्लाइंट्स देन इवेंट मैनेजर्स. ठीक है. एंड लिटरली आई तो फील विद डायरेक्ट क्लाइंट्स मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ. दे विल कॉल यू n number of times. with event managers it's they know we are in a happy place. We are, right, because they know, they have seen our work, they work with us on a daily basis, so they know if this particular person comes and takes the stage, I am tension free. And the same thing happens with us. Have you ever felt एक शो के बाद भाई आज today I've done like आज तो सबको मेरे साथ सेल्फी खिंचानी पड़ेगी? मतलब At times जब इवेंट मैनेजर्स बोलते हैं उसके पहले ही मुझे फील हो जाता है कि मैंने बहुत अच्छा शो किया. We know ना, जब मैंने कभी-कभी हुआ है ऐसा, मुझे बहुत फील हुआ है कि बहुत अच्छा शो किया है मैंने. Like I tell you, एक इंसिडेंट अभी हुआ था. So I was hosting a show for Chennai Super Kings, and Dhoni was there. Wow. Bravo was there, and 3 more players were there with me. एंड क्या होता है कि शो शुरू होती है एंड उनका प्रोटोकॉल होता है कि वो 20 मिनट्स के लिए आ सकते हैं. देन दे हैव देयर प्रैक्टिस. सो जैसे 3-4 प्लेयर एंटर करते हैं एंड फिर धोनी एंटर करते हैं, यू नो द ऑरा धोनी कैरीज विद हिमसेल्फ. तभी पूरा जगह का पावर कट हो जाता है. जनरेटर गोज ऑफ. स्टेज में ना लाइट, बैंक्वेट में लाइट नहीं है, माइक काम नहीं कर रहा है. एंड लकीली वो बैंक्वेट बहुत बड़ा नहीं था. सो आई वाज लाइक जैसे ही पावर कट हो जाता है, मैं इधर उधर नहीं देख के मैं माइक पोडियम में रखी एंड मैं बोली इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हिम. इट इज बिकॉज ऑफ धोनी. द काइंड ऑफ ऑरा, द एनर्जी ही कम्स अप विद, उसके सामने ये पावर फेल हो जाता है. एंड ही इज लाफिंग एट मी एंड द ऑडियंस, वो मतलब वो उनके माइंड में ही नहीं है कि पावर कट हो गया है. ठीक है. तो मैंने बोला कि पहले मैंने ऑडियंस से पूछा एम आई ऑडिबल? सो दे सेड यस. बट फिर मुझे लगा कि प्लेयर्स को मैं फोर्स नहीं कर सकती कि जोर से बोले, तो मैंने सोचा कि भूल जाते सब, मेरे पास बैट था. आई वाज लाइक आई क्लियर करिए, चलिए क्रिकेट खेलते हैं. एंड 15 मिनट्स तक पावर नहीं आई. एंड यू गाइस वर प्लेइंग क्रिकेट. 5 मिनट हम लोग क्रिकेट खेले. फिर मैंने धोनी को बोला कि प्लीज़ आप शॉट मत मारना, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर शॉट मारने का जगह नहीं है, हेलीपैड नहीं है, तो आप सिर्फ वो माइंड करना कि आपको शॉट मारना है. एंड उसके बाद ये किया. उसके बाद मैं पहले से बाकी प्लेयर्स के कुछ रील्स देखे थे, तो मैंने बोला कि चलिए विदाउट गाना उस रील में आपने जैसे डांस किया वो सारे डांस करते हैं. एंड 15 मिनट्स मैंने मैनेज किया कैसे भी. फिर पावर आ गई एंड उसके बाद ब्रावो को जो बुके मिला था उससे वो मुझे फेलिसिटेट किया. तो ही इज लाइक कि सो नाइस. या उसने मुझे फेलिसिटेट किया एंड आई न्यू दैट द क्लाइंट वाज वेरी हैप्पी विद मी. एंड फिर क्लाइंट ने कहा शो खत्म होने के बाद कि अन्वेषा थी तो हम लोग बच गए. very important thing as an MC and as an anchor I observed कि आप से ही मैंने I think सीखा है. My first event when I was hosting with you, नहीं मैं first event जो आपके साथ किया था, I told you I was very nervous. She is the best anchor in the country, I would say. And इसीलिए हम लोग टीचर बन गए थे और फिर वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था. तो I was flirting with the teacher. And I was genuinely very nervous inside कि मैं कैसे for me that was a big day कि I'm co-hosting with Anisha Di. I was so nervous, but then I realized a lot of things कि सबसे important चीज़ मैंने आपसे जो सीखी वो था we have to stop blaming everyone else. माइक नहीं चल रहा या ये नहीं हो रहा, साउंड चेक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ. आपका काम है एंकर होना, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है माइक चेक करना. हाँ. आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहले से लाइट को चेक करके रखना आपके ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा.
आपकी वो स्क्रिप्ट वाली, आई वाज लाइक you are more comfortable with a bigger font, so you will get the print out. Yes, you don't have obviously. to, you can't blame later कि आपका स्क्रिप्ट में छोटा font था. Do not blame ना, try to do something कि blame करना ही नहीं पड़े. Okay Anisha, let us ask few controversial questions. Okay, a bad चलेगा. person to ask questions. Okay, what's your Wrong age? person. Controversy create करना है. कल ही born हुई हूँ मैं. तुम्हें Oh, पता है. nice. How much do you charge for a show? Average? No, I will get back to the first question. What's your age? So people ask me what's my age, and I'm being honest. मैं बढ़ा के बोलती हूँ because people think I'm young. तो मैं बढ़ा के बोलती हूँ उनको कि लगे कि ये तो कर लेगी भाई, ये तो कर लेगी. एज ज़्यादा है, दिखती छोटी है. I would still say No, it's 25. 32. I'm 92 born. The maximum amount you've got in a single event, like in a single day, 1 lakh rupees for one event. for one event because it was a full day event. Like I had to reach at 9 and I left the venue at 10:30. So I've charged 1 lakh. for Are that. you a spendthrift? No, So you save a lot of money. I do. बहुत ही और and I have a policy कि if I am charging 1 lakh for a show, just imagine, which I don't. If I am charging 1 lakh for a show, then I know कि उसी टाइम पे मुझे 70,000 हटा देना उसमें से, and बाकी 30 I will spend like that. As a freelancer ना ये बहुत बोला जाता है that अपना करियर शॉर्ट लिव्ड है. एंकर्स को खासकर बोला जाता है कि 35 के बाद टाटा बाय बाय, बिकॉज you'll have wrinkles and things will change and all, and उसका एक तो you said that we need to evolve with the trend. Yes. But एक अंदर कहीं ना कहीं fear तो रहता है कि number of shows might reduce in future or there will be more competition. So is the saving because of that fear or is it? I tell you how I manage this. Saving is something which everybody needs. Right. Our parents need, you need, I need it for my daughter. I definitely need. She would need for her, the next generation she'll have. So everyone needs. So saving is for everybody. But when you say कि 35 के बाद bye bye टाटा खत्म, नहीं, सबर करो, right? Because you plan your thing कि मैं 35 के बाद क्या करने वाली हूँ और मैं वो कैसे कर सकती हूँ. में आप ज़्यादा हो सकते हो. नहीं, ऐसा नहीं, आप जॉनरा वही रख सकते हो. आप जॉनरा वही रख सकते हो, बट उस पे नहीं है. बट आप प्लानिंग कैसे करो. फर्स्ट इज हमारे इंडस्ट्री में लुक्स बहुत मैटर करता है, फिट रहना बहुत मैटर करता है. तो व्हेन यू हैव अ चॉइस टू स्टे फिट, व्हाई वुड यू नॉट टेक दैट चॉइस. करेक्ट. इट इज़ बोथ फिजिकली आपके लिए बहुत अच्छा है, करियर वाइज आपके लिए बहुत अच्छा है, मेंटली आपको फिट रखता है. सो आई हैव सीन a lot many artists into smoking, drinking and बहुत सारे bad habits में हैं. तो अगर आपको choice दे, like my biggest motivation is Akshay Kumar, who will say that what is his age right now, like he has a choice कि वो continue कर सकता है till like for a longer period. Right. So क्यों ना लिया जाए वो choice. अगर आपके पास है, वो आपके हाथ में है, तो try it. राइट आप फिट रहने के लिए आजकल 100 चीज़ें हैं. एवरीथिंग इज़ वेरी इजी दीज डेज. आप करो. आपके पास रिसोर्स नहीं है, आप घर पे करो. कोविड हैज़ टॉट अस अ लॉट ऑफ थिंग्स. लोग जिम नहीं जा पाते थे, तो मैंने लिटरली किया है. फ्रेंड कॉल आहाना, मैं लिटरली मैं वर्कआउट करती थी. तुमने कहा एक फेज था मेरा, कोविड का फेज था. व्हाई? बिकॉज कोविड में लाइक ऑल ऑफ अस वर ईटिंग अ लॉट. घर पे करना ही क्या है, खाना बनाओ खाओ, खाना बनाओ खाओ. एंड उसमें रील्स आ रहे थे, ये कॉफी, ये डिश, वो डिश. लाइक आपको तो मतलब इट्स लाइक जीभ लपलपाए. व्हाट इज दैट सेंटर फ्रूट का टाइप. सेंटर फ्रूट का. सो वो देखो और बनाओ और खाओ. सो यू विल गेन वेट. तो मैंने क्या किया, आपके पास टाइम है, आपके पास काफ़ी वक्त है. मैं आहाना को बोली कि आप वीडियो कॉल में आओ और मुझे वर्कआउट कराओ. एंड आई डिड. तो मैं खाई बहुत और मेंटेन भी की खुद को बहुत, क्योंकि मुझे पता है कोविड ख़त्म होते ही आई हैव टू गेट बैक टू माई वर्क. राइट. तो आपको सब कुछ दिमाग में रखना पड़ेगा. सबके पास 24 घंटे होते हैं. तुम्हारे पास है, मेरे पास है, बाकियों के पास है. और उस 24 घंटे में ही कोई इंडिया को रिप्रेजेंट करके फर्स्ट आ रहा है और कोई कुछ भी नहीं करके घर पे बैठा है. Right? So you have to understand how you utilize that 24 hours in your life. अच्छा, so what are your plans after 50? Because 50 तक तो you're not aging. So I just want to know. I might be in the industry and competing with you.
so you never वो know. तो आप You never know. But I have other plans too. Like I want to do a course on business management. After like कुछ personal चीज़ें हैं जो ख़त्म होने का मैं wait कर रही हूँ. By God's grace हो जाना चाहिए इस साल तक. उसके बाद I want to do a course on business management. तो वो मैं करूँगी. And उसके बाद I have few business plans to do. तो वो side by side till the time I can work, I will work. Till the time people think I am okay to work, I will not force myself कि नहीं एंकरिंग ही करना है और करना ही है. लोगों को मैं पसंद नहीं आ रही हूँ, नहीं. जब मुझे लगेगा कि लोगों को मैं पसंद नहीं आ रही हूँ, हाँ, वो पहले से ही मैं अपने माइंड में कर ली हूँ कि मैं, बहुत लोग होते हैं कि काम नहीं है, डिप्रेशन में चले जाते हैं. Jim Carrey once said कि no, don't call yourself depressed until you are working out every day, eating good food, meeting your friends, working. Even after doing everything for 1 year, उसके बाद also if you are feeling depressed, then you call yourself depressed. घर पे बैठे in a room and just like lying down. I'm a person, I will never go into depression. I will rather watch Kapil Sharma show and laugh. So you're very happy with life. I'm a happy child and I'm always happy high with my life. I want to live my life to the fullest. And जैसे ही मुझे लगेगा कि नहीं अब हो चुका है, एंकरिंग से कुछ और करना चाहिए, इसीलिए मैं साइमल्टेनियसली वो जल्दी स्टार्ट करना चाह रही हूँ, क्योंकि जब तक मेरा ये सोर्स बंद होगा तब तक वो सोर्स में मैं फ्लरिश हो चुकी हूँ. And people often like because I don't want to struggle again. I have struggled a lot in this career. किक स्टार्ट से स्टार्ट करना है ना. अब थोड़ा साइमल्टेनियसली मुझे स्टार्ट करना है कि जब तक ये बंद हो वो शुरू हो जाए. बहुत लोग ना ये अंडरमाइन करते हैं खासकर एंकर्स के बारे में, दैट अरे आप तो खाली यही कर रहे हो, एंड वंस यू डोंट गेट शोज व्हाट विल यू डू, बट दे डोंट रियलाइज द पावर ऑफ नेटवर्किंग. बिकॉज एवरी डे इन एवरी अदर इवेंट टुडे आई नो इफ यू वांट अ जॉब, लेट्स से लाइफ में इफ यू एवर वांट अ जॉब, यू हैव 200 companies to send your CV to with the personal reference of the CEO. Yes. Now that is an immense networking power. They have seen you, they know you. आपको एक edge तो already मिल गया हर जगह. Your word is of value. ये power of networking बहुत लोग utilize भी नहीं करते. And बहुत लोग undermine भी कर देते कि यार people are still asking me कि भाई you know what if you ever want to do a job. I'm like I have 50 companies जिनके CEO अब भी मैं बोलूँगा अब भी मेरे को ले लेंगे भाई. Right. They abhi content is in the game. They want a content head. They want a marketing guy. They want speakers. They want trainers. So not a bad field, guys. Yeah. So she's earning a lot. There's a lot of scope these days. Yeah. मतलब इतने तो हमारे टाइम पे तो मैंने सिर्फ सुना है लोगों को आईटी में काम करते हुए डॉक्टर, इंजीनियर या इनकम टैक्स या पुलिस लाइक दैट या आईएएस, आईपीएस, थिंग्स लाइक दैट. तब किसे पता था कि एचआर, मार्केटिंग, मीडिया इंडस्ट्री, मतलब कुछ एंकर सिर्फ गेम खिला के पैसे कमाते हैं, सिर्फ गेम्स खिला के. कोई कभी सोच सकता था कि ऐसा कोई इंडस्ट्री आएगा सिर्फ गेम खिला के लोगों को, खुद भी एंजॉय कर रहा है वो बंदा, राइट? खुद भी एंजॉय कर रहा है एंड वैसे उसे पैसे मिल रहे हैं. सो इट्स अ वेरी like Goa, Thailand, Dubai, you're traveling, you're enjoying. नहीं, not all anchors enjoy traveling, हाँ. मतलब I do not enjoy much of traveling because at a stretch मुझे airport में सोना पड़ता है. You told me something about your sleep management, just like in short if you can tell me. I can sleep anywhere. Like मुझे अगर लग रहा है मेरा यहाँ कमर दुख रहा है, मैं यहाँ सो सकती हूँ. मेरे दिमाग में घूमेगा कि सोना है. It's like that. Yes. So at times what happens when anchors travel a lot, other artists also do. So वो मैनेज करना बहुत ज़रूरी है कि आपको कहाँ सोना है. I remember मेरा एक stretch of shows था, like from Siliguri to Bombay to Bangkok to Goa to Delhi, जब मैं घर वापस ही नहीं आई थी. एंड मुझे प्लान करना था मेरा सोना, और सोने का जगह सिर्फ एयरपोर्ट था बिकॉज एवरी नाइट आई वाज ट्रैवलिंग, बिकॉज सुबह या शाम को मेरा शो होती थी. तो लिटरली दिल्ली वाला शो में आई रिमेंबर कि मैं शो करके एयरपोर्ट में गई एंड एयरपोर्ट में जाके आई वाज मेरे को लाउंज एक्सेस नहीं मिला था, तो मैं नॉर्मल एक बेड जैसे सोफा पे मैं सो गई. बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल. एंड किसी ने आके मुझे ऐसे बुलाया, मैडम
आई वाज लाइक एकदम नींद में मैं उठी एंड आई वाज लाइक यस. तो ही इज लाइक आप ही वो दिल्ली कैपिटल्स वाले शो में थे ना आज. तो मैंने बोला कि हाँ मतलब क्यों, मतलब आप मुझे नींद से क्यों जगा रहे हो उसके लिए. तो बोलता है नहीं आप बहुत जोर से यॉन कर रहे हो. I was like, okay, that's like the worst thing happened. You have to be an anchor biggest throughout your life. embarrassment. I was like, फिर मैं उस चीज को मैनेज की. I was like हाँ इंसान हूँ, हो ही सकता है. I'm tired. बस सेल्फी लेना है. तो बोलता नहीं बस आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे. I was like ठीक है और 5 घंटा बस इतना ही हॉल्ट है, उसके बाद तो आप दूसरा सीट ले लीजिए ना, क्योंकि मुझे पता है मैं फिर यॉन करूँगी. I'm so tired. So you have to manage your sleep timings. It is very important to sleep properly. A lot of people prefer not to sleep. कि नहीं ये सो जाऊंगी तो मैं सो जाऊंगी, फिर शो में मैं पहुंच नहीं पाऊंगी. नहीं, आप थोड़ा सोच के समझ के प्लान करो, बिकॉज ठीक टाइम पे सोने पे भी बहुत उसके अच्छे पॉजिटिव इफेक्ट्स है. आप अगर सोओगे टाइम से, उठोगे टाइम से, तो मेरी तरह तो अच्छा मिलेगा.